Okay, so today we'll begin with language barrier. Language barriers are also known as semantic barriers. Now, जो language barriers होते हैं, they are inability to converse in a language that is known by both the sender and receiver, right? So what is happening here is कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच में जब कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती या तो लैंग्वेज में जो मिसकम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से जब उनको समझ में बात नहीं आती है दैट क्रिएट्स अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन when a person uses inappropriate words while conversing or writing so words की वजह से भी कई बार बैरियर क्रिएट होता है व्हेन दे आर ट्राइंग टू कन्वर्स यानी जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं या तो लिखने की कुछ कोशिश कर रहे हैं इट्स डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू इंटरप्रेट व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से इट कुड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर so let's begin with some of the examples of language barrier now language barrier का first जो major reason है that is because of the different language in different countries right so हर एक country में world wide अगर आप देखें तो हर जगह पे कोई अलग लैंग्वेज बोली जाती है कहीं पे फ्रेंच बोली जाती है कहीं पे स्पेनिश बोली जाती है कहीं पे इंग्लिश बोली जाती है इटालियन पोलिश सो देर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेज की जो हर जगह बोली जाती है एंड उसकी वजह से बैरियर क्रिएट होता है द अदर थिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज इन द सेंस कि जो बात हम कहते हैं लेट्स से हिंदी में या इंग्लिश में वो ही चीज को बिल्कुल अलग तरीके से दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है एंड दैट क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन गैप बिकॉज अगर आपको वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही है देन यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली even if we take the example of India, we have 122 major languages and 1599 other languages. So India में ही इतनी languages बोली जाती है and sometimes the same word may mean different thing in different language. So for example, अगर हम ये word लेते हैं मोटा, then हिंदी में it means fat, whereas गुजराती और मराठी में उसको elder brother भी कहा जाता है. So you would have heard many times people saying मोटा भाई. So it's not fat brother, it means elder brother, right? स्लैंग वर्ड्स का मीनिंग होता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड आप इनफॉर्मली यूज करते हो एंड दैट इज नोन एज स्लैंग सो टू गिव यू एन एग्जांपल व्हेन आई वाज इन यूके उस टाइम पे आई वाज इन यॉर्कशायर एंड दे सेड टा and that was very commonly used ta so I was in this shopping mall buying few things, and while I made a payment, the lady on the counter she said to me "ta," and I was like, "What is this?" Right? So I was confused, but what "ta" means is thanks. So now it's a very simple thing once you know, but until you don't know what it means, it's complicated for the people who don't understand. So even though I know English, even though I knew thanks and what it means, but because they said it cha, I didn't understand. And that happens to us all the time. Even in Gujarati as well, there are so many different slangs which people use which sometimes you don't know what exactly it means. So dialect and accent. Dialect and accent यानी हर एक लैंग्वेज में अपने अपने अलग अलग dialects और accent होते हैं. To give you some simple examples, अगर let's say आप I don't know where you all are from, but I'm sure you can give me some more examples on this. Once I give you one or two examples, डायलेक्ट और एक्सेंट का मीनिंग होता है कि लैंग्वेज वही होती है बट ग्रामेटिकली और जो वोकेबलरी यूज होती है उसमें जो आपके टोन यूज होते हैं वो चेंज करके जब आप बोलते हो दैट इज नोन एज डायलेक्ट एंड एक्सेंट्स सो टू गिव यू एन एग्जांपल अगर आप लेट्स से राजकोट साइड जाते हो
then they normally say inakni dadiye सीधा सीधा हाले आ जाओ, right? So if you don't know what it means कि सीधे straight चले जाओ, right? So even let's say अगर आप मेहसाना side के हो, then generally you will say चमसा, right? So chamsa ka meaning hota hai kemche, right? But then that is a different accent. So if you don't understand what exactly it means, it can create a problem. So let's move on to the next point, interpretation of words. Interpretation of words, yani a research found 14,000 meaning of 500 words, right? So 500 वर्ड्स जो थे उसके 14,000 मीनिंग्स निकलते थे एंड एवरीथिंग मीन्स डिफरेंट. सो एक ही वर्ड के काफी सारे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. एंड I have taken two examples here. The first one is value, right? So value, when you are talking about value, it can mean different things. So for example, value as in price भी हो सकता है. कोई वैल्यूएबल मेटल की भी आप बात कर सकते हो. वैल्यू इन द सेंस इम्पोर्टेंस के बारे में भी आप कर सकते हो कि दिस डिग्री इज वैल्यूएबल टू मी, राइट? सो विच मीन्स कि इट्स इम्पोर्टेंट टू मी. सो वैल्यू का यूज जो है वो ही कई तरह से हो सकता है. सिमिलरली आई हैव टेकन दिस अनदर एग्जांपल हियर ऑफ रिंग, राइट? सो जिस तरह से आप पिक्चर्स में देख सकते हो, रिंग कैन मीन सो मेनी थिंग्स, right? So that also creates a lot of confusion for the people who are not native speakers या तो जिनकी जो हम मदर टंग बोलते हैं, if that is not इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, तो रिंग का मीनिंग जैसे उन्होंने समझा है उससे काफी डिफरेंट हो सकता है. एंड सिमिलरली फॉर वैल्यू एज वेल. देन टेक्निकल और साइंटिफिक वर्ड्स. कई बार काफी सारे टेक्निकल और साइंटिफिक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता है एंड दैट कैन आल्सो क्रिएट कंफ्यूजन फॉर अस. देन जार्गन्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, बट विल गो थ्रू विद दैट अगेन. जार्गन्स का मीनिंग होता है कि जो भी वर्ड्स हैं पर्टिकुलर फील्ड में यूज होते हैं वो वहाँ के फील्ड के लोग अच्छे से समझ पाते हैं, बट people who are not from that field, it is very difficult for them to understand and interpret that. So for example, let's say अगर आप business में हो, then for you knowing USP and using USP is a very common thing there. USP का मीनिंग होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी किसी भी चीज का अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उस चीज में क्या मेन फीचर्स है, उसको जब आप हाईलाइट करते हो, दैट इज नोन एज द यूएसपी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? एंड दैट इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर यू कि इस ये दूसरी किसी प्रोडक्ट में नहीं है, सिर्फ इसी में है. सो दैट इज योर यूएसपी. बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट फील्ड and if you are not aware about that terminology, it is confusing for you, right? So similarly, seeing into stands for chief officer, but so if you call CO, then it's chief officer. But if you are again not aware about it, it's difficult to understand. Even last time हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप सब साइंस फील्ड के हो, सो साइंस फील्ड में आपके लिए बहुत कॉमन हो सकता है साइंस की टर्मिनोलॉजीज को यूज करना. बट वही चीज अगर आप कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे, दे विल फाइंड इट कंफ्यूजिंग. सिमिलरली अगर वो अपनी कोई टर्मिनोलॉजीज आपके साथ शेयर करते हैं, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड. So I hope we are clear. Let's move on to this example. So the problem is your modem, right? Can't interface with your ISP because your RJ11 cable needs upgrading. Now, अगर आप कंप्यूटर फील्ड के नहीं हो, देन ISP, RJ11 ये सारी चीजें आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है. बट व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से इज वो सिर्फ इतना ही कहना चाहता है, यू जस्ट नीड अ लॉन्गर वायर, राइट? सो हो सके उतनी सिंपलर टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी चाहिए in order to avoid confusion and misinterpretation.
So then the next is extensional meaning and intentional meaning words. Extensional meaning yani something that cannot be expressed in words because it is that which the word stands for. It's the territory. यानी extensional words वो words होते हैं जिसका कोई और meaning आप नहीं निकाल सकते हो. So for example, अगर मैं table कहती हूँ then it means table, right? So उसका कोई दूसरा meaning नहीं होता. For example, chair then it is chair. It does not have any other meaning to it. But if I say smart, तो smart के काफी सारे meanings निकल सकते हैं. So when I say he is a smart boy, then it can create lot of interpretation. जो सामने वाला person है वो शायद ये भी समझे कि अच्छा नॉलेज में ये स्मार्ट है, दिखने में स्मार्ट है, राइट? सो देयर कैन बी ड्रेसिंग स्मार्ट है उसका, सो देयर कैन बी मेनी इंटरप्रिटेशन एंड दैट इज नोन एज इंटेंशनल मीनिंग वर्ड्स कि जहाँ पे आप उसके काफी सारे मीनिंग्स निकाल सकते हो, वेरएज एक्सटेंशनल में उसका सिर्फ एक ही मीनिंग रहता है. सो देन नेक्स्ट इज सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर साउंड करते हैं, राइट? सो दीज वर्ड्स आर नोन एज होमोफोन्स. सो होमोफोन्स में क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है बट आपका स्पेलिंग और मीनिंग ये दोनों चेंज हो जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल पेल एंड पेल, नाउ ये दोनों ही जो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है, अल्टर एंड अल्टर, बाय बाय ये सबका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम रहता है, रेन रेन, राइट? बट उसके स्पेलिंग्स आप देखो तो वो अलग है और इसके मीनिंग्स भी अलग है. बट दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द पीपल हु आर नॉट नेटिव स्पीकर्स अगेन. सो होमोफोन्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. देन यू हैव होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स क्या होते हैं? उसमें स्पेलिंग सेम होते हैं बट उसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग ये दोनों डिफरेंट रहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, द बैंडेज वॉज वाउंड अराउंड द वुंड. ये स्पेलिंग्स आप देखो दोनों ही सेम है, राइट? बट दिस वन इज प्रोनाउंस्ड एज वाउंड एंड दिस इज वुंड. वाउंड का मीनिंग होता है कि उसको उसके आसपास लपेटना, राइट? एज एंड वुंड यू नो कि चोट जहाँ पे लगी होती है उसको वुंड कहते हैं. Then the next is we must polish the Polish furniture. Now polish and polish ये दोनों सेम है बट प्रोनाउंसिएशन अगेन डिफरेंट हो रहा है. पॉलिश का मीनिंग होता है जो फर्नीचर वगैरह पे हम पॉलिश करते हैं एंड पोलिश का मीनिंग होता है जो पोलैंड का फर्नीचर है उसको हम पोलिश फर्नीचर कहते हैं, राइट? ही कुड लीड if he would get the lead out. So again ये दोनों word के spelling same है, pronunciation is different. So moving on to homonyms. Homonyms में क्या होता है? Spellings भी same है, pronunciation भी same है, but उसका meaning different हो जाता है. So never desert your friends in the desert. So ये spellings भी same है, pronunciation भी same है, बट ये दोनों का मीनिंग अलग है. इस डेजर्ट का मीनिंग होता है कि छोड़ना, कभी भी अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं, राइट? एंड कहाँ नहीं छोड़ना है? डेजर्ट एज इन रण जो बोलते हैं हम, राइट? क्लोज द विंडो बिफोर द बी गेट्स टू क्लोज. तो यहाँ पे विंडो को क्लोज करने की बात है एंड बी यानी जो भमरी बोलते हैं हम, राइट, गेट्स टू क्लोज, राइट? सो जो बी है वो बहुत ज्यादा करीब आ जाए उससे पहले विंडो को क्लोज कर दो. Then next is denotations and connotations. Denotation and connotation का मीनिंग ये होता है, डिनोटेशन का मीनिंग होता है कि लिटरल मीनिंग, यानी जो वर्ड जैसा है वो उसी तरह से एग्जैक्टली आपको समझना है. वेरेज जो कोनोटेशन है उसका मीनिंग ये होता है कि उसके कंटेक्स्ट में कुछ आपने कहा है, राइट? So to give you some example, let's say अगर हम ये example लेते हैं, okay, so if we take example of a word snake, right? So उसका denotative meaning जो है, यानी अगर आप उसको डिक्शनरी में देखोगे उसका मीनिंग विच इज लिटरल मीनिंग, राइट? सो उसका मीनिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, न्यूमरस स्केली legless sometimes venomous reptiles
having a long tapering cylindrical body and found in most tropical and temperate region. यानी पूरा जो स्नेक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि वो एग्जैक्टली कैसा है, एंड दैट इज द लिटरल मीनिंग. वेरएस कोनोटेशन में अगर आप यूज करते हो, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंसान को कहते हो कि ये नाग जैसा है या तो नागिन जैसी है, तो वहां पे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, द पर्सन इज नॉट एक्चुअली स्नेक, बट यू आर यूजिंग दैट इन अ कोनोटेशन, यानी उस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इविल या तो खराब है, राइट, या तो जहरीला है. So that is the kind of thing you are trying to show. Then the next thing is idioms and phrases. Idioms and phrases जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं. जैसे हम काफी सारे हिंदी में भी idioms and phrases यूज करते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. एंड इवन इंग्लिश में भी, जैसे यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. सो इट डज नॉट मीन कि लिटरली कैट्स और डॉग्स का रेन हो रहा है, राइट. व्हाट इट मीन्स इज कि बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही है. और फॉर एग्जाम्पल वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग होता है वेरी रेयरली. सो वो जो हम बोलते हैं उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं होता है. But again, for a person who is not aware of those idioms and phrases, तो उसके लिए language barrier यहाँ पे create हो सकता है. So barriers आपके create होते हैं language में because of regional accents, dialects, right? So जो हमने देखा कि हर एक जगह की अपनी खुद की एक dialect होती है, खुद के accent होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो वहीं पे बोले जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन क्रिएट अ बैरियर. नो क्लियर स्पीच, यानी अगर किसी पर्सन की स्पीच ही क्लियर नहीं है, इफ दे आर नॉट स्पीकिंग लाउड इनफ, और इफ दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. यूज ऑफ जार्गन्स एंड स्लैंग, वर्ड चॉइस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है. लिटरेसी एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है देन डेफिनेटली उसको लैंग्वेज बैरियर आने वाला है, बिकॉज उसको लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी, राइट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीड. सो इफ यू हैवंट गॉन थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, और इफ यू हैवंट लर्नड इट, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. ग्रामर एंड स्पेलिंग, सो ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग भी कई बार काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है. I hope you like this video. Please like and subscribe and leave your comments below and share this video with your friends to spread the knowledge. Thanks for watching.